They are joined. Hi everybody. Good evening. How are you doing? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग श्रीनी सर. श्रीनी सर नहीं, मैं वेंकट सर. मैं श्रीनी सर का लैपटॉप लिया. ओके ओके ओके. Yeah. So thank you everybody for joining this. You can switch on your camera also so that we can talk. This is not like say ordinary webinars. We'll be discussing about your problems and we'll be creating one solution for you. Initial solution at least. Yeah. Hi, Ajay. Ankit, you can switch on your mobile, your video. Mani Prakash also. Good evening, ma'am ji. गुड इवनिंग मैम. Good evening. Good evening, ma'am. Switch. Myself Mani Prakash. I am being working as a team leader in Atal Bhujal Yojana, Yuva Mitra, and we are going to conduct the training. Going to conduct the trainings for villagers and panchayats. We are CB Capacity Building Agency Very good, very good. for Mahendragarh, Dadri, and Bhiwani districts. Okay. Okay. So right now, can we start? Can we start? श्योर मैम. Yeah. So namaskar everybody. So what let me tell a bit about you. Everybody can switch on their camera, no? That will be good. No, listening to you and talking to you, that will be great. So hi Ankit. Of course, ma'am. Yeah. Hello, ma'am. Only the this thing, no, your voice should be muted so that no sound comes, if that is okay for you. Yeah. I said I am a leadership growth mentor and I have been working in developing the leaders in wherever they are. Leaders means the first time managers who are into 6 to 12 years of experience and they get stuck. Why? There is a simple reason for that. If you are a very, very potential person, you feel that that potential is within you, then something wrong happens at workplace, you feel stuck. वो बॉस ने कुछ नहीं किया यार, वो कलीग ने कुछ बोल दिया, this kind of things, उसी में फंस जाते हो. And then what happens कि आप like say you stop thinking about your potential. वो जैसे आपका गर्लफ्रेंड है, आपका बॉस या फिर वर्क प्लेस, you start thinking like that only. 24 hours only problem. So when you think about only problem, your mind will only get problem. Solution कब आए? There will be no solution. बात बस इतनी सी है. So the moment you start thinking about solution, because you are a potential person, that is why you are a manager. मैंने तो आपको मैनेजर नहीं बनाया ना, मैनेजर आपका ऑफिस, आपका ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया. So you are already a potential person. That is why you have been made a manager and you have been given a portfolio to handle all by yourself. Now that you start thinking about innovations. When you start thinking about innovation, you start doing also. खाली नहीं, कुछ लोग होते हैं सोच के रह जाते हैं, कुछ लोग होते हैं काम करते हैं, right? The moment you start taking action, results will start happening. Results will start happening. The moment results will start happening, क्या होता है? You will start very small. First तो आप वो जान लो. Results, when you start doing something, results will start happening and you will be surprised to know that opportunities will come rushing. जो आप only when you were thinking about problems, वो opportunities आ नहीं रहे थे. Agree with me? 100% agree? Yes. So opportunities के बाद क्या होता है? There is another stage also. There will be
मोर एंड मोर ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिसके बारे में आप कभी सोचे ही नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल one of my project areas where I was working with women farmers, basically. So I trained these women farmers to how to do agriculture. Beforehand, they didn't know agriculture. I am not from an agriculture background, but I was telling Venkat also that I am not from agriculture background, but I did health, I did technology, I did agriculture, I did HR, सारा कर लिया. And right now what I am doing is again something very different. I am doing policy advocacy, So how do if I can do, anybody can do. So कैसे मैंने किया? बड़ा सिंपल सा तरीका है. I am not very बहुत ही अच्छा मैंने एक्सेप्शनल स्टूडेंट या कुछ से ऐसे भी नहीं है. स्टूडेंट हो के कोई आके इधर काम नहीं कर सकता है. I think so. They can be the boss, but they cannot be the implementers. That is what I feel. Implementers will be only innovative people who have the potential, and potential people ही वो है जिनको गुस्सा आता है. The moment the boss says something, आपको बड़ा जोर का गुस्सा आता है because you have been giving 100% to your organization according to you. भले ही आप उस डायरेक्शन में नहीं काम कर रहे हो जिस डायरेक्शन में आपका some other. अच्छा. Thank you for joining everybody. Hello. Thank you for joining everybody. So welcome you all. So I was saying the people who have lot of potential, those people only get gussa, anger, and that इतना गुस्सा आता है कि वो स्टक हो जाते हैं. स्टक इसलिए हो जाते हैं कि फिर beyond that गुस्सा they cannot think anything else. So we'll be discussing that कि आप वो छोटा सा, आपको कोई मिलना चाहिए जो आपको बताए कि कहाँ पे अटका है यार. Why are you stuck? मैं जब ट्रेन एंड बस में जब ट्रैवल करती थी, 25+ years of experience हो गए मुझे, उसमें से काफी सारा टाइम जो आप लोग काम करते हैं वही सारा काम मैंने किया. So I used to be working in very remote places as well. मैं बड़े जंगल, घने जंगल और बड़े रिमोट एरियाज में काम किए. तो वहां पे भी अगर बस और ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आई हैड हर्ड पीपल. आप भी सुनते होंगे व्हेन यू ट्रैवल. क्या सबसे बड़ा टॉपिक क्या होता है लोगों में जब डिस्कशन होता है? ट्रेन में लंबा ट्रैवल पे जा रहे हैं, ओवरनाइट जर्नी है. व्हाट इज द टॉपिक? द फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स. मोदी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया. अगर वो टॉपिक नहीं है देन मेरे बॉस ने ये कर दिया, मेरे कलीग ने ये कर दिया. यार पता है इतना वो है, जाके चुगली करता है. एंड देन द टॉपिक स्टार्ट्स एंड इट नेवर एंड्स. एक्सपीरियंस दैट. इट सो हैपेंड ना, मैं उड़ीसा में आई वाज वर्किंग समवेयर एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल every day in that particular bus at the same time, and I was meeting the same set of people every day while going, while coming back, and every day the same discussion. 6 महीना. Can you believe? Same discussion, कोई आगे पीछे नहीं हुआ. And so then I started thinking कि इतना एनर्जी जो वेस्ट करता है, कुछ कर ही लेता तो it would have been better for them, right? When you think, you think and speak lot of negative things. सब किसका जी जलता है? Who gets affected? आप करते हो तो आप ही का होता है ना. पता भी नहीं होता है आपके बॉस को जिसके अगेंस्ट में आप बोल रहे हो इतना, क्योंकि आप बॉस के सामने तो झगड़ा किए नहीं कभी, उनको बोले नहीं कभी. कब बोले? you only spoke behind him. Now what happens? वो उसको तो पता नहीं चला, आप ही का जी जला. समझ में आया? Agree? So let us go to my presentation and see what happens, what you do. So आप लोग ना, I'll request you to please stay so that we can have discussion in between. जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे कुछ आपको बोलना चाहिए, please बोलो, right? And tell your side of the story so that it becomes a good discussion.
Let me open it also. चारी आपका वीडियो ऑन करो. So everybody is able to see my screen. Yes. हाँ. Actually, Venkat Guru, I am in a function, so I didn't open yeah, my okay, video. Yeah, okay. क्या हुआ? Anything happened? No, actually he's in function. That's why I'm not able to open video like this. Okay. No issue, no issue. But are you able to see my screen? Not with Yes, ma'am. Okay, It okay. is Great, great, great. So this is about leadership growth. Everybody, all of you, each of you is a leader. And where you are stuck is you don't know whether you are a leader, right? You don't know. So there are 6 stages. Leadership kya hota hai? It is about how you become significant for your company. That is what you think, na? So we think कि बॉस हो जाने से सिग्निफिकेंस मिलता है, आप रिकॉग्नाइज होते हो, यू बिकम पावरफुल बिकॉज यू आर ए बॉस. ऐसा सोचते हो आप लोग कोई? डू यू थिंक लाइक दैट? यस, नो? Can you repeat, ma'am, something? Please, ma'am, kindly repeat it again, ma'am. I am asking you a question. Do you think to be a leader only when you get promoted? आप बॉस हो जाते हो तभी खुद को समझते हो कि you are the boss, you have the power or you are the leader, तभी समझते हो जब प्रमोशन होता है? ऐसा है? yes, no? समझ नहीं आया? मोस्टली तो मैम ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से तो सोचते हैं कि भाई लीडरशिप कंसेप्ट के अनुसार से हम इस प्रोग्राम को लीड करें, लेकिन जनरली तो 60% यही होता है कि जब हमें प्रमोशन मिलता है तभी हम सोचते हैं कि लीडरशिप में है. या मैं मोस्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ. मोस्टली ऐसा ही होता है. हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैंने वेंकट को दिया था. ठीक है? सो द एग्जांपल इज, एक राजा है अपने पूरे राज्य में, ठीक है? और एक कवि है, पोएट है, जो कविता लिखता है, ठीक है? तो राजा को कितने लोग, कौन लोग पहचानेंगे? जो लोग उस राज्य के होंगे. उस राजा का दूसरे राज्य में वो चला जाएगा तो कोई सम्मान होगा क्या? लेकिन अगर आप कवि हैं और जो लोग आपको पढ़ते हैं आपकी कविता, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, इस राज्य में हो सकते हैं, दूसरे राज्य में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, हो सकता है. तो ज्यादा सम्मान किसका है? कवि का. यस मैम. हाँ, तो ये कवि के पास तो पावर नहीं था, फिर सम्मान कैसे हो गया? तो बट ही है नॉलेज, उसके पास नॉलेज है. नॉलेज है, क्रिएटिविटी है. तो आपको डायरेक्ट एग्जांपल नहीं मिला कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी होगा, अगर आपके पास नॉलेज होगा, देन आपका सम्मान होगा. तो आप क्यों डिपेंड करो किसी के ऊपर कि आप प्रमोशन दे दो तो हम अब खुद को बड़ा समझे? क्यों? सही बोला मैंने, राइट? तो आज से आप लोग नहीं सोचोगे खुद को कि आप कम हो कहीं से, राइट? बॉस जो है उस पोजीशन. मैम हम सोचते, मैम मैं बीच में बोल रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम. हम सोचते तो नहीं है कि हम क्रिएटिव भी हैं, बट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब सेम ही अनएफिशिएंसी वाला व्यक्ति जो बिल्कुल अनएम्पावर्ड है उसको ज्यादा कुछ पावर्स मिल जाती है और स्किल्ड पर्सन को उसके अंडर में कुछ काम करना पड़ता है ना, तो कई बार बीइंग ए ह्यूमन नेचर थोड़ा सा हो जाता है दिमाग में. जी मैम जी. हाँ, ठीक है. ये आपने सही पकड़ा कि गुस्सा तो आता है. मैंने पहले से ही बोला था, शुरू में मैंने बोला था कि कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को आता है जिसके पास पोटेंशियल है. मेरा कहना ये है कि आप भूलो मत कि आप में पोटेंशियल है भाई. आप पहले भूल जाते हो ना, तभी आपको इतना गुस्सा आता है और आप काम करना बंद कर देते हो, थोड़ा बहुत काम करते हो. जब आपको गुस्सा होता है, किसी भी बंदे को देख लीजिए इस दुनिया में, जो गुस्से में होता है या फिर जिसके पास कंप्लेंट है, वो 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम करता है. इंडस्ट्री डेटा है, मैं नहीं बोल रही, ठीक है? अगर
आप पैदा हुए हो इस दुनिया में पूरा पोटेंशियल 100% पोटेंशियल के साथ, और अगर 20% प्रोडक्टिविटी पे पूरी जिंदगी गुजार दोगे, क्या होगा आपके पोटेंशियल का? कौन दोषी है उसके लिए? कोई दूसरा नहीं है आपके अलावा। ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल मैम, पूरा वेस्ट हो जाएगा। पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो अपने लाइफ को वेस्ट करना है या फिर काम में लगाना है, किसकी जिम्मेदारी है? अपनी। ठीक, जिम्मेदारी मैम। हाँ, तो अभी कैसे लगाएं उसको काम में? वो है लीडरशिप ग्रोथ। जैसे ही आप सोचते हो, ये अभी जो आपके दिमाग में चल रहा था, एक मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया। अभी आज के बाद आप में से कोई वैसा नहीं सोचेगा जैसा सोच रहे थे, ठीक है? तो ये पहला स्टेप आपने ग्रोथ की तरफ बढ़ाया, राइट? तो और भी कुछ है जैसे हम कर सकते, जैसे मैं वेंकट के साथ अभी काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे कोच वो 100% काम करता है, हार्ड वर्किंग है, एवरीथिंग है, बट छोटी छोटी चीजें ट्विक करने से वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। ही विल बिकम पावरफुल इन रियल सेंस। वो मैं अभी उनके साथ कर रही हूँ, वैसे ही मैं आप सभी के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि यही मैंने सारी जिंदगी की है। अनपढ़ लेडीज के साथ भी मैंने काम किया है जो नरेंद्र मोदी साहब से अवार्ड लिए हैं। आप बताइए कि कौन से प्लानिंग में मैं लिखती कि मेरे पढ़ाए हुए लोग नरेंद्र मोदी से अवार्ड लेंगे? ये मैं प्लान नहीं कर सकती ना, कोई कर सकता है क्या? दिस वाज समथिंग, क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्स है ना, भगवान है, भगवान से ये वरदान मिला। मुझे नहीं मिला, उनको मिला अवार्ड, तो उनको मिला, लेकिन अवार्ड लेने लायक किसने बनाया? मैंने बनाया। अगर वो अनपढ़ लोग कर सकते हैं, और मैं उनके बारे में और भी बताती हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड जो कलेक्टर का होता है, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उसके मेंबर भी बने वो। और जब वो बोलती थी तो बाकी सारे लोग चुप होके उनकी बातें सुनते थे, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से आता था। जब मैं उस एरिया में गई थी तो रास्ता वास्ता था नहीं। मेरा एमडी जो था उसने बोला कि तुम अगर वहां पे पहुंच जाओगी ना, वो बड़ी बात हो जाएगी। मैं वहां पहुंची भी, वहां रही भी 4 साल जंगल में उनके साथ, जहाँ पे बाघ था, बाघ टाइगर रिजर्व अगर आप गूगल करेंगे, वहां पे मैं रही थी 4 साल जंगल में। मेरे घर के बगल से बाघ गुजरते थे, और मैं वहां पे इसलिए गई थी, और वो प्रोजेक्ट हमको इसलिए करने को मिला था क्योंकि ये लोग, वहां पे फेंसिंग नहीं था, टाइगर रिजर्व था तो फेंसिंग नहीं था, तो लोग कोर एरिया में चले जाते थे। कोर एरिया में चले जाते थे, बाघ से मुलाकात हो जाती थी, दौड़ के भाग जाते थे, बाघ अटैक कर देता, बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो हमको फॉरेस्ट एरिया ने बोला था, फॉरेस्ट के जो होते हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने बोला था कि कुछ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स इनको दे दो, कुछ फॉर्मुलेट कर दो, डिजाइन कर दो, ताकि इनको जंगल में नहीं जाना पड़े। तो जो अनपढ़ लेडीज हैं उनको आप क्या लाइवलीहुड्स दे सकते हो? अचानक से पढ़ के उनको ग्रेजुएट तो नहीं बना सकते हो ना। उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको लोन, बड़ा सा लोन दे के करो, मतलब कुछ उनका बिजनेस तो नहीं चला सकते, एग्रीकल्चर ही सिखा सकते। तो देन मैंने वो केवी के जाके साइंटिस्ट लोगों को बोला कि आप चलो और दीदी लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे दो। मुझे बताए, मैडम आप बहुत जंगल में घुस के काम करते हो, वहां पे तो हम नहीं जाते, आप उनको ब्लॉक में ले आओ, हम ट्रेनिंग दे देंगे। अब बताइए, जो घर से नहीं निकला, इतना बड़ा घूंघट है, वो कहाँ ब्लॉक में आते? वो भी ट्रेनिंग लेने को, किस कौन सा ट्रेनिंग होता क्या है नहीं पता जिसको। तो देन मैंने सीखा और उनको जाके सिखाया। फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ स्टोरी का, 4 साल बाद एक बहुत ही मतलब कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको मैंने ना, वो जो अल्पना डालते हैं ना, नहीं डालते हैं चावल के पाउडर से अल्पना डालते हैं त्योहारों में, उसी डिजाइन में उनका नाम लिख के डिजाइन बनाया, और मैंने बोला कि ये आप अपना नाम प्रैक्टिस करो, राइट? तो वो नाम अपना लिखना वैसे ही सीखे ना। उस स्टेज से ये गए और चारों तरफ से रोड वोड बन गए 4 साल में। उनके पास इतने अनाज हो गए कि वो सोसाइटी को बेचे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये वही एरिया था 4 साल पहले। कोई नहीं बोल पाएगा। सो इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने ही सारा कर दिया, लेकिन ट्रिगर तो मैंने शुरू किया।
जब मैं गई थी वहां, मेरे पास कोई वर्कफोर्स नहीं थे, उतना जंगल में जाके कौन रहता, तो मुझे वहीं पे लोगों के साथ बात करके ही उन्हीं को बनाना पड़ा। ऊपर 500 लेडीज, सबको मैंने एक एक स्पेशलाइजेशन दिया। किसी को रूट ट्रीटमेंट का, अगर आप एग्रीकल्चर के साथ काम करते हैं तो आपको पता होगा, रूट ट्रीटमेंट एक छोटा सा है, कैसे करते हैं, 3-4 चीज लेते हैं, उसमें भिगो के रखते हैं, 24 आवर्स के बाद निकालते हैं। किसी को सीड ट्रीटमेंट का, किसी को नर्सरी बनाने का, किसी को कुछ और करने का, किसी को कुछ फूड करने का, किसी को मिर्ची लगाने का, किसी को SRI का, ऐसे करके मैंने सबको एक एक छोटा छोटा दिया स्पेशलाइजेशन, कि एक दूसरे से राइवलरी ना हो, कि इसको खाली सिखाया आपने, उसको नहीं सिखाया। और किसी को खाता पत्री रखने का सिखाया, जिसके पास थोड़ा सा 1 2 3 4 लिखने का था, लिटरेसी। सो ये वो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड में बैठी, इन्होंने 4 साल में 17 अवार्ड जीता, और इंक्लूडिंग CII अवार्ड जो 1.5 लाख का होता है, दिल्ली से वो लेके गए मिनिस्टर के पास, और इनके पास 36 लाख का कॉर्पस हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया। ठीक है, तो ये शुरू जिस दिन किया होगा, बहुत ही छोटा शुरू किया होगा, आपको पता है, तो एक एक को बोला होगा, कैसे बोला होगा। आज बात किए, और एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है, बताती हूँ, कि पहले दिन मैं जब गई तो वहां पे बोली, दीदी कल मैं एक मीटिंग करूंगी, तो आप सभी लोग रहना। अगले दिन जब गई तो कोई नहीं था घर में, कहाँ गए, जंगल में भाग गए, क्योंकि मैं आके पता नहीं क्या पूछूंगी, तो इसको डर के मारे क्या बोलना होगा पता नहीं, तो भाग गए। ठीक है, और फिर ऐसे ही 2-3 बार कोशिश करने के बाद अच्छा हम रुकेंगे, उनके घर में खाना खाई, ऐसा की, तो थोड़ा सा कनेक्शन बना, जो आप लोग भी करते होंगे, बना। तो उसके बाद क्या है कि ये एक दिन मैं गई तो कोई बोल नहीं रहा, इतना घूंघट निकाले हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मैं बोली कल तक तो बात करते थे, आज क्या हो गया, तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर घूंघट देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैं 4 बार जब पूछी, यार क्या हुआ, कुछ बताओगे तो मुझे समझ आएगा। तो एक आंखें मेरे कान में बताई कि दादाजी वहां बैठे, उनके कोई ससुर जो दिख भी नहीं रहे हैं एरिया में, वो कहीं बैठे हैं घर में, इसीलिए कोई बोलेगा नहीं एरिया में। 40 लोग वहां पे मीटिंग में बैठे हैं, कोई नहीं बोले। सो देन मैं गई, दादाजी को बोली कि आपके बहू लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप दादा चले जाएंगे क्या दूसरे घर। दादा गए तो फिर ये लोग बात की, ये थी, मतलब इतना था। उस स्टेज से इन लोगों को यहाँ पे लेके गई। देन ये लोग मस्टर्ड प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़े, बताइए। सो इट वाज लाइक से समथिंग चमत्कार हो रहा था। और सभी कोई बोलते हैं ना, और जब मैं शुरू की थी तो 3 महीने का खाना इनके पास होता था, 4 साल के बाद ये अनाज बेच रहे थे। सो इट वाज लाइक ए मिरेकल। तो ये कैसे हुआ, आज भी हमारे कभी बातचीत में बोलते हैं ना कि 70 साल हो गया आजादी को, हमारा देश अभी भी भुखमरी में है, कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता, सुनते हैं ना आप ये लोग। तो मैंने 4 साल में वो करके दिखाया था। तो अगर एक बहुत ही रिमोट एरिया में 4 साल में मैंने कर दिया था अकेले, बिना कोई वर्कफोर्स के, लोगों को ही साथ में लेके, क्या हम सब लोग मिल जाएंगे तो पूरी दुनिया से भुखमरी नहीं निकाल सकते 4 साल में, ना हो 8 साल में सही। तो वो मेरा मिशन है, वो मेरा मिशन है। अगर ऐसा कुछ मिशन है आपके, और इस मिशन के साथ अगर आप जुड़ जाते हो, आपको बॉस फिर तौल नहीं कर सकता। बॉस क्या बात है, फिर आप इतने बड़े मिशन के साथ चल रहे, राइट। आप बोलोगे कि एक बार आपकी बात सुन लिए, दूसरे दिन भूल जाएंगे, तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो भूलने नहीं देंगे ना, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि सभी कोई साथ में आ जाओ, ताकि हम लोग साथ में मिलके हर चीज का समाधान ढूंढेंगे, राइट। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही 2 चीज अगर आप सुनते होंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल को बताता है, कम्युनिकेशन स्किल को। 1 मिनट रुकिए।
मुझे खोलना है दरवाजा, एक खोल के आती हूँ, एक मिनट। ये कहाँ है, घर में? हाँ सॉरी। हाँ, सो क्या बोल रहे थे, किस टॉपिक में थे, एक बार याद दिलाइए। हाँ हम सब मिलके करें तो वो भुखमरी खत्म नहीं हो जाएगा ऐसा, या हाँ कुछ अपना विजन रखो जो उससे जुड़े हाँ। रहो तो बहुत कुछ नहीं कहेगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप एक बड़ा सा विजन अपने लिए चूज कर लीजिए। कोई भी आपको लगे कि कहाँ ये हो सकता है, वो सब सोचने का नहीं है। यू हैव टू राइट समथिंग बड़ा, ऐसा इतना बड़ा जो कि आपको लगे कि आज के दिन में तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, ऐसे डराए आपको, ऐसा एक विजन स्टेटमेंट लिखो। तो एक एक मिशन स्टेटमेंट मेरा ये ऐसे है कि impacting 1 billion lives in 139 countries with the help of 1 lakh super power global players। जो आप लोग हैं, आप लोगों को मैं सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर्स बोलती हूँ। इन विथ ए $multi-billion एंटरप्राइज। आपको क्या लगता है ये आज के दिन में हो जाएगा? मैं यहाँ कहाँ बैठी हूँ यार, क्या बात करती है, बिलियन बिलियन लग रहा होगा ना मन में, लेकिन वो मैंने अपने लिए रखा है इसलिए, बिकॉज नो आप अगर स्टार को अगर एम करेंगे ना तो मून तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। अभी तक मैंने 1 करोड़ लाइफ को इम्पैक्ट कर दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ जब कर लिया, बहुत सारे लोग मेरे साथ होंगे, तो 1 बिलियन कितना है, और 100 गुना ही तो है। 100 लोग मिल जाएंगे तो नहीं कर सकते। इट इज इजी। अगर आप एक्सेल सीट में डाल के कैलकुलेशन करो ना, इट इज वेरी इजी। छोटा सा नंबर है, लगता बड़ा है। ऐसे ही कोई भी बड़ा अगर हो, मुझे एक बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कनाडा भेजा था स्टडी टूर के लिए। तो मैं 500 लोगों के साथ 500 फैमिली के साथ काम कर रही थी और बड़ी परेशान थी कि इनको कैसे हम लाइवलीहुड दे दें। ये शुरू की बात है, वहीं की बात कर रही। और वहां पे जिसने मुझे पढ़ाया कनाडा में, उसने बोला कि बांग्लादेश में उन्होंने 35,000 हाउस होल्ड के साथ काम किया। अभी आप लोग आराम से 30,000 हाउस होल्ड के साथ काम करते हो, इतने सारे लोग, राइट? तो उस टाइम में मैंने सोचा कि 35,000 4 साल में कैसे कर दिया। सो देन वो मुझे बोले कि इट इज वेरी इजी टू डू एनी नंबर व्हेन यू हैव ए प्रॉपर प्लान। सो दिस इज द सेकेंड थिंग मैं आपको सिखा रही। पहला तो आप बड़ा सा विजन बनाओ। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया कि आप में बहुत पोटेंशियल है, राइट? एंड थिंक अबाउट दैट आप अपने खुद को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सोचो, ताकि आपको कोई और तंग ना कर पाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैंने बताया आपको कि विजन बड़ा हो। विजन अगर बड़ा हो, कुछ एक अगर आप लिख लें, तो फिर आपको ये छोटी छोटी बातें तंग नहीं कर सकती। तीसरा क्या बोल रही हूं मैं? प्लानिंग अगर हो सही से, प्लानिंग अगर 80% टाइम लगा के अगर प्लानिंग करे तो एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाता है। सो उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया कि कैसे प्लानिंग उन्होंने किया था। जब उन्होंने वो बता दिया प्लानिंग कैसे किया था, मैंने भी सोचा ये तो हो ही सकता है। जब आप प्लानिंग करते हो ना, आपके माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, आप खुद को डराते रहते हो, ये नहीं हो सकता है, और यह कैसे ही होगा, ये यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, ये तो करना ही नहीं, ऐसे करके। सो बट आप अगर निकाल दो उस सब डर को, खुद को मत डराओ। हम खुद को काफी डराते हैं विथ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है? ये तीसरा चीज है। प्लानिंग करो 80% टाइम सॉलिड, एंड देन एग्जीक्यूट करो। कितना भी बड़ा नंबर है हो जाएगा, राइट? चौथी बात ये है
कम्युनिकेशन के बारे में बताती हूँ। जैसे ही कम्युनिकेशन की बात आती है तो सभी कोई इंग्लिश सीखने दौड़ता है। तो एक ऐसे स्टूडेंट मेरे थे, तो उनको वो भी आए थे। तो मैंने उनको पूछा कि अगर आपको इंग्लिश आ जाए तो आप जो बोलोगे, क्या आप हिंदी में मुझे बता सकते हो? आप हिंदी में अच्छे हो। तो देन ही सेड कि सोचना पड़ेगा, कल बता। मैं बोली सोच के आप बताओ। तो अगले दिन फिर से मैंने उनको पूछा, आज बता सकते हो हिंदी में जो आपको इंग्लिश में बोलना है? तो वो बोला कि सोच नहीं पाया, कुछ सोचूंगा। देखिए, जब आपको पता ही नहीं है बोलना क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, उससे फर्क क्या पड़ता है? और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलना है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप हिंदी में बोल रहे हो कि इंग्लिश में बोल रहे हो। आप बोल ही डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोलोगे? क्या बोलने में आपको अच्छा लगेगा? बताओ कोई। क्या है वो सब्जेक्ट एक जिसके बारे में आप बिना रुके घंटों बोल सकते हैं? बताओ, ऐसा कोई सब्जेक्ट है? अच्छा, सोच के बता। एक सब्जेक्ट मैं आपको देती हूँ, मैं थोड़ा सा आपके दिमाग घुमाती हूँ। आप एक टेस्ट में दूंगी, जब आप प्रॉपर मेरे क्लास में आओगे। तो टेस्ट मैंने दिया था वेंकट को भी, पर्सनालिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, कुछ भी। आपके स्ट्रेंथ कितने हैं? 5 जरूर से हैं। उस जो टेस्ट आप लेंगे ना, उसमें 5 स्ट्रेंथ आपके निकालेगा वो। दूसरा एक टेस्ट करेंगे, उसमें एक क्राइटेरिया आपका निकालेगा, आप लीडर कैसे हैं। उसमें 4 एस्पेक्ट हैं, सो 5 वो और ये 4। ठीक है। जैसे ही आपका 5 स्ट्रेंथ निकला, 5 आपके वीकनेस भी निकलते हैं। सोना आपने देखा है? सोना 24 कैरेट सोना, कोई 24 कैरेट सोना पहनता है क्या? क्यों नहीं पहनता? क्यों नहीं पहनता? बहुत क्योंकि स्मूथ मैम होता है। वो बहुत लचीला होता है, वो बन ही नहीं सकता उसका गहना हाँ, 24 कैरेट का, तो इसलिए उसमें मिलाना पड़ता है मिलाना इसको पड़ता है। सॉलिड करने के लिए। हाँ हाँ, ये सही जवाब है। तो आप 100% प्योर नहीं हो सकते। जो आपको स्ट्रेंथ भी मिल गया ना, वो 100% प्योरिटी आपको दे देगा, मत सोचो। फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। इसीलिए आपके साथ वो 5 स्ट्रेंथ के साथ 5 आपके नेगेटिविटी भी आते हैं, ताकि आप उसमें काम कर सको। ठीक है, राइट? जी। समझ में आ गया? तो मैं उसको अल्टर्ड स्ट्रेंथ बोलती हूँ, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ दिलाता है दूसरे तरीके से। तो ये 5 हो गए और ये 5 हो गए, और 4 आपके कैरेक्टरिस्टिक मिल गए लीडरशिप टाइप से। इतना ही लेते हैं। चलिए, कितने हो गए टोटल? 14 हो गए। और एक आपका हॉबी या फिर एक स्किल ले लीजिए, 15 हो गए। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आता है किसी को? थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 15 टाइप की चीजें हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी के 15 चीजें हैं। तो आपको सबसे एक एक करके एक बारी में उठाना है, एक जगह रखना है, फिर से मिला देना है, फिर एक जगह रखना है। ऐसे करके आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो उसका एक फॉर्मूला है 15C4। तो उसका मतलब होता है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। कोई गुना करके मुझे बताएगा कितना हुआ? आप में से कोई? 15 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 12। 32,760। हाँ, सो मान राउंड करके सोचते हैं कि 32,000 ही है। 33,000। हाँ, 33,000 लेते हैं। अब ये 33,000 क्या है जानते हैं? ये आप ही से निकला, आप ही के गुण से निकला। तो मतलब एक एक एस्पेक्ट अगर मैं एक बारी में लूं, एक स्टोरी बनाऊं, एक एक एस्पेक्ट आपका, फिर दूसरा एस्पेक्ट लूं, तो आपके 32,000 स्टोरीज बन सकते हैं, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट।
आपके लाइफ में वो स्टोरीज हुए हैं अभी तक या फिर हो रहे हैं, आगे भी होंगे। ठीक है, ठीक है। आपको कितने पता है अपने बारे में स्टोरी? 10 भी पता है क्या? 10 भी नहीं पता होंगे अपने बारे में। अच्छा, कुछ तो वो जो स्टोरी जब आप बनाएंगे ना, ये आपके स्ट्रेंथ के बारे में था, तो आपको कितना सोचना पड़ेगा। सोचिए कि कहाँ पे लगे यार इतने मेरे जो गुण हैं, ये कहाँ, ये मैडम बोल रही है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में हो गए या फिर होने वाले हैं, कहाँ पे लगे, कहाँ पे हुए हैं ये सब। तो स्टोरी निकालने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्टोरी, मान लीजिए मैं 100 स्टोरी आपके लिए लिख दूं, कभी हम बात करेंगे 1 to 1, तो वो 100 स्टोरी आराम से आपके सामने खड़े हो जाएंगे विद इन से 30 मिनट्स। 100 स्टोरी तो आराम से खड़े हो जाएंगे। अब वो 100 स्टोरी अगर आपको पता है तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं ढूंढोगे उसको बोलने के लिए। आप जो भी पूछेगा कि आपने क्या क्या किया है, वो मैं एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ आउटलाइन कर करके उसमें लिखूंगी। तो कोई अगर बोलेगा, अगर आप हार्ट टू हार्ट कर लिए उसको, तो आप फटाक से बोलना शुरू करोगे, ये मैंने इसलिए किया, और कन्विक्शन दे दे के मैं आपको बताऊं। आप बोलेंगे, मैं लिखूंगी आप ही के सामने, क्रिएट करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कर दिया तो आपको पता चल गया, राइट? आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी, और 100 स्टोरी अपने बारे में बोलो छोटा छोटा करके, तो कितना इंप्रेस होगा। कोई भी इंटरव्यू आप फेल हो सकते हो क्या? फिर आप तो इंग्लिश को भूल जाओगे। आपके दिमाग में अभी ये आएगा कि कैसे वो स्टोरी लिखा जाए, राइट? ये आ रहा है। तो देखिए, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की तो बात ही नहीं की हमने। किसकी बात की? स्ट्रेंथ की बात की। आपने अभी तक क्या किया है उसकी बात की। तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अभी अब तक का एक्सपीरियंस, और जितना स्ट्रेंथ लेके आप पैदा हुए हो, जितने सारे काम में आपने लगाए हैं, और जो भी सारा चीज आपने किया है ना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और वो कोई अगर आपको सवाल करेगा और जानना चाहेगा आपके बारे में, तो उसी को ही पता चलेगा और उसको सवाल करने आना चाहिए। तो आप लोग इंटरेस्टेड होगे ना वो 100 स्टोरी आपका खुद से निकालने का? सो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो फॉर्मूला, जो मैं जिसके लिए ये वर्कशॉप कर रही हूँ, और आज मैंने तो पीपीटी बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों से बात करनी थी, तो किसी दिन वो पीपीटी को भी देखेंगे। कि इसलिए भी देखेंगे क्योंकि जब पढ़ाई शुरू होगी ना, इसलिए भी देखेंगे क्योंकि कहाँ पे अटके। आप देखेंगे बहुत सारी चीजों पे हम खुद को अटकाए देते हैं। तो वहां पे जैसे कम्युनिकेशन स्किल में मैंने अभी बताया कि इंग्लिश नहीं सीखने की जरूरत है भाई, पहले तो स्टोरी लिखो। जो भी लैंग्वेज में आपको आता है, हिंदी इंग्लिश मिला के भी आता है तो लिखो। नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं, राइट? जबकि आप ही क्या लाइफ है, आप ही ने किया हुआ है। अब मेरे साथ मिलके जब लिख पाओगे तो आपको खुद को नहीं पता है क्यों। ठीक है, हमारे सिस्टम में ऐसा कभी था नहीं, इसीलिए नहीं पता। नेक्स्ट थिंग क्या सिखाएंगे कि आप कैसे, जो भी आपका एक्सपीरियंस, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो ये सारे एक्सपीरियंस काफी है या फिर और भी कुछ चाहिए इसमें? हाँ या ना? बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहता है कि अच्छा मैं वहां से पीएचडी कर लेता, तो वहां से एमबीए कर लिया रहता, तो वहां से कुछ कर लिया रहता तो बहुत अच्छा रहता मेरा करियर। भाई फिर आपका काम कौन करता? आप अगर जो काम कर रहे हो, ये इस पर्टिकुलर काम को करने वाला दूसरा नहीं होता। अगर आपके प्रोफाइल में कोई दूसरा आ गया ना, वो काम भी दूसरा हो जाएगा। एग्जैक्टली जो आप कर रहे हो, जो क्वालिटी ला रहे हो, अभी आप बता नहीं पा रहे हो, इसीलिए किसी को पता नहीं चल रहा है। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा बताएं? वो इस तरह से होगा ना, जब आप ही को क्लैरिटी होगी कि कौन सा काम को आगे, कौन सा पीछे। जैसे जोड़ना होता है ना,
1 के बाद 2, 2 के बाद 3। मान लीजिए आप एक फेस बना रहे हो, आपने सुना है वो स्टोरी जिसमें पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ देता है एक मैप को, और फिर सुना है। हाँ, बेटी को बोलता है कि ओके। जोड़ो इसको, तो वो 5 मिनट में जोड़ देती है। कैसे जोड़ देती है? क्योंकि वो मैप के पीछे जीसस क्राइस्ट का फोटो था, उसी को देख देख के वो जोड़ देती है, पीछे से जोड़ देती है, राइट? तो स्ट्रेटेजी हुआ ना वो। तो ये जो आपको बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा काम करना है, वो एक स्ट्रेटेजी के पीछे बंधा है। सो यू नीड टू नो कि वो स्ट्रेटेजी क्या है। तो उस स्ट्रेटेजी में क्या आता है, एक कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 टास्क कौन से हैं, आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो। अगर मैं आपको बोलूं दिन में कितना काम कर लेते हो और कितना काम करना चाहिए आपको, तो आप एक लिस्ट बनाओगे इतना बड़ा, कम से कम उसमें कुछ बहुत कम हुआ तो भी 25 तो होगा, 25 टास्क तो होंगे। टू डू लिस्ट बनाते हैं आप लोग? टू डू लिस्ट कितने होते हैं उसमें? सभी को बताया? 10 से तो अबव रहते हैं, एवरेज 10 से अबव रहते हैं। हाँ, और कितने अचीव हो जाते हैं? एक दिन में कितने अचीव हो जाते हैं? 70 to 100 के बीच में हो जाता है। 70 to 100। तो उसमें 100 हो जाने के बाद आपके करियर में वो असर क्या करता है? क्या आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है क्या ऐसे 3 काम होते हैं दिन में जो आपके बाकी 70% काम को आसान कर सकते हैं, ठीक है? आपको वो काम पकड़ना चाहिए। अगर आप वो नहीं पकड़े और 70% भी काम कर दिए और 30% में वो काम रह गया, देन आपका काम करना फालतू में गया, ठीक है? आप किसी को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप कोई काम कर रहे हैं। हालांकि 70% काम करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और आपने काम किया है, राइट? तो वो उसको परेटो रूल बोलते हैं, जिसमें होता है ये कि 20% ऐसे काम पकड़ो जो 80% रिजल्ट दे आपको, ठीक है? तो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में 3 काम ऐसे रखो जो आपका बाकी सारा काम कर दे। तो आज ही वेंकट के साथ हम काम कर रहे थे, तो उसमें मैंने उनको बोला, एक काम उनका बताया मैं बोली कि ये काम करने के लिए, एक राउंड काम करने के लिए आपको 120 दिन लगेगा। कहाँ है आपके पास दूसरा काम करने के लिए? जबकि वो बाकी सारे काम कर रहे हैं, और इस काम को वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे। टाइम नहीं निकाल पाना दूसरे की गलती थोड़े है, इनकी है। तो सबसे, और वो काम इनको इंटरेस्टिंग भी लगता है, और ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं अगर इस काम को कर पाए। तो स्टिल ही इज नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि वो प्रायोरिटी ही सेट नहीं हुआ इनके लाइफ में। तो आज हो गया, तो देन ही विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। एक बार ही आपको वो गलती होती है, प्रायोरिटी सेट करनी, राइट? आपका कॉन्टेक्स्ट हमेशा ही चेंज होता है, आपके लाइफ में चारों तरफ चीजें बदलती रहती है, उसके अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन है वो आपको डिसाइड करने आना चाहिए, राइट? सेकंड है कि बॉस के साथ झगड़ा हो गया और किसी और को फेवर करे तो कैसे करे, मणि प्रकाश शायद पूछ रहे थे। सो देन मैं एक बात बताती हूँ आपको, इतने सारे जो मैं बोली इसमें तो फिर वो बॉस किसी और को फेवर नहीं कर सकता अगर आप इतना समझ गए ठीक से। वो बॉस की औकात ही नहीं है कि वो किसी और को फेवर करेगा, वो आपके पीछे आएगा ही आएगा। फिर भी कोई बॉस होता है वो किसी और को बहुत ज्यादा फेवर करता है, तो उसमें परेशान मत होइए। आप जानते हैं कि वो ऐसा होता है, वो इसलिए होता है कि वो अपना खुद इनसिक्योर है, बिकॉज ही इज वीक इनसाइड। उसको चाहिए कोई बंदा जिसका सहारा उसके पास हो, जिसके बारे में वो 100% श्योर हो कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या आप वो उस बॉस का साथ देना चाहोगे जो खुद से वीक है? जो वीक है बंदा वो आपको कहीं भी फंसा देगा,
सो डोंट बॉदर कि वो बॉस का साथ देना है उसका अप्रूवल पाने के लिए. थोड़ी देर की बात है, थोड़ा वेट कर लो. द मोमेंट यू बिकम कैपेबल ना, देन यू विल टेक ओवर. मणि प्रकाश आप सुन रहे हैं तो यस नो बोलिए. Agree. Yes. So this is the scene. See, ये truth है. मैंने कुछ अलग से नहीं बोला. Now then आपको एक सेकेंड लाइन लीडर्स, अभी वेंकट ही मुझे बता रहे थे कि सक्सेसर प्लान क्या है. तो आप इसी एंगल को लेके चलिए. और कुछ दिन पहले, शायद 4 दिन पहले, मैंने एक आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन में. आप सभी कोई मेरा आर्टिकल पढ़ो. उसमें मेरा रोज का जो एक्सपीरियंस बनता है ना, मैं उसी को लिखती हूँ. कोई पुराना चीज उसमें है नहीं. तो लिखती नहीं हूँ कि आज मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ कि वैसा हुआ. उसका एक बताती हूँ जैसे दूसरे लोगों को भी फायदा. मेरे ऑफिस में क्या हुआ, आपको क्यों इंटरेस्ट होगा भाई. ठीक है. सो इट हैज टू बी जनरलाइज्ड सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर अदर पीपल. मानते हैं सभी को? एग्री? यस. यस. क्या हुआ? रजुला ब्रह्मचारी को काफी देर से मुझे देख रहे हैं, कुछ हंस नहीं रहे. Yeah, basically he's from Telugu background. Okay. He's, Are you able to catch Brahmachari? Okay. So, I didn't know. I would have spoken in English only. So sorry about that. So, what I was saying. So second line leaders, na. So the moment, see, ultimately what you want, every day 8 hours, each of us works, right? 8 hours. So that 8 hours, agar if you look at it closely, it is actually 4 hours work. Agar aap properly, if you have planned it properly, what happens to the rest 4 hours? Why are you wasting that? वो इसलिए कि you haven't planned. Like say, if you don't decide the सब्जी that you are going to make next day. ये छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लो. आप घर में देखो, your wife, no, if she doesn't decide what सब्जी she is going to make next day, she will waste a lot of time in deciding कि क्या सब्जी अब सुबह बनानी. So the actual sabji making takes only say 15 or 20 minutes, but deciding on what sabji to make, it takes 45 minutes. The same with her sari. So before going to a function, if she starts deciding ki bhai which sari to wear, usi mein 1 घंटा गया, right? Acha, this sari should look better. कौन मना करेगा? Who will help her? No. So that is why I say कि आप पहले से उसको करो, right? Now that time that you can say, you want to say, but the moment everybody sees around कि you have sufficient time with you, ना, extra काम लेके आ जाएगा. हाँ, you are sitting idle, so ये काम भी कर लो ना, आपके पास कोई काम, right? So, but that time you need to invest in training your second and third rank so that they get to know कि whatever routine work that you do, na, that routine work they should take care of. Being a leader, you have to invest your time in planning and strategizing only. That is your job. How to take the company forward is what should be your thought process. Baki sare kaam, if you give to your second line leader, and if she or he doesn't know how to do it, then you have to do it, na? It is not your job. समझ में आया? You are doing the job of your second and third line, and your second and third line leaders actually will be happy to learn something new and to do something which the boss does. उनके लिए तो आप boss हो. If the boss shares with them something which is of use to them,
and which will take them a step forward towards their promotion, they will be very happy to do. Right? So, and decide whether you are teaching a bird to fly and a fish to swim. Don't train one of the fish to fly and bird to swim. Ulta mat karna. And to decide on that strength, that is a strategy also. You have to spend time with them, watching, observing which work he or she does, loves, does well, all those things. Time लगता है ये सब करेगा, आंख बंद करके नहीं कर सकते. So invest your time in that. You have to learn a lot. Then only you can teach. Every time you teach something, learn something. Every time you learn something, teach something. Learn, do, teach. Learn, do, teach. ये था गुरुकुल परंपरा some time back of India. India was the training capital of the world. 200 साल पहले तक कैसे होता था? नालंदा आपने सुना होगा. It was like say university, Takshashila, Nalanda, and other universities also with it. So we are heading towards that. जैसे ही हम सीखेंगे, we will do. जैसे ही the moment we do, we will learn. Fail होंगे, success होंगे, right? Success होंगे, okay. Fail होंगे, that is a learning. Then we would find another way. So then learning happens. Thomas Alva Edison के बारे में सुना है? Who invented the electric bulb? Yes. He couldn't do a perfect bulb. जो bulb हमारे पास है ना, he couldn't do. He tested 10,000 metal combinations, but he couldn't do. Who did it? Tungsten. एक साइंटिस्ट होते थे जिनके नाम का कार्बाइड उस फिलामेंट में है, बल्ब के फिलामेंट में. Tungsten, I think tungsten. हाँ, yes, tungsten carbide is the metal, क्या बोलते हैं उसको, metal combination which is inside that filament of that ball, which actually is sustainable. वो grow करता है. Earlier everything was like say going off in 30 minutes time. So Alva Edison को पूछे कि you have failed 10,000 times, but he said कि I know 10,000 combination which doesn't work. That gyan I have. See, so every time you fail, you have that gyan. Nobody else will have. Because you fail, you can teach how not to fail to your second generation, right? So they will save time. They will not reinvent the wheel, right? That way, when they save time, you will save in budget of the company. उनको ट्रेनिंग करने में तो पैसा जाता ना. Some of you would have trained again and again. जाके अपना एक्सपेरिमेंट करो, सीखो बोलने से how much time would they have wasted? So now you have taken the training, learned it, did it, and implemented it, and you are giving the insight to the next generation. They will invest in something else. Now, repeatedly same thing नहीं करके. This will be observed by your company. आज नहीं तो कल, ये कंपनी नहीं तो कोई और कंपनी. And this is what the big, जितने भी बड़े बड़े नाम सुने हैं, करोड़ वाले, करोड़पति, सब यही करते हैं. They don't reinvent the wheel. And another story, एक कुंफू इंस्ट्रक्टर थे. So another competitor came. Competitor नहीं, शिष्य बोला कि सुना है कि you are the best कुंफू instructor. कुछ सिखा दो. So then this Kung Fu instructor asked him, so how much you learn? So this student says, I have learned this, I have learned that, I have learned that, and bola kuch. So 10-20 times. So then he said, acha, let us know, let us stop this diya from burning. कर सकते हैं, like से हम एक गुजा मारेंगे and it will go off. ऐसे कर सकते हैं. So वो बोला कि अच्छा कर सकते. Then he tried ना, दिया जलाया and then it ऐसे करके लेके गया दिया के सामने, दिया बुझ गया. Anybody can do that. And instead तो instructor आए, then he started like this and ऐसे ही किया था, दिया बुझ गया.
The diya was at that time. So it was the power of now focus. So he said, I am not afraid of the 10,000 things that you know. I am afraid of the one thing that you have practiced for 10,000 times. Right? So what is the learning from here? Learning is आपको जो एक चीज आता है वो आपने 10,000 times practice किया है क्या? If किया है, then there will be nobody else in this world like you. So don't underestimate whatever skill you have. Done? Yeah. And then overcoming ambiguity. बॉस ने कुछ बोला, बॉस के बॉस ने कुछ बोला, आपके जूनियर ने कुछ बोला, उसके जूनियर ने कुछ बोला. ऐसे होता है कभी? Does this happen? Whenever a new things get introduced, यही होता है. गवर्नमेंट के साथ भी यही होता है. आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों फेल होते हैं? Right now I am working with the government. I also worked in Bandhavgarh where these ladies were the leaders, na? I worked there and I went to every department. What are the schemes that we can take benefit of? And they have listed out so many schemes. This is the scheme, that is the scheme. We took every scheme, we understood it, how it is to be implemented. We implemented and got the result. That is how we succeeded out there. Iska matlab kya? Government schemes work. But why people say कि government schemes तो काम ही नहीं करते? In other areas, what I have seen is the moment the government floats a scheme or a policy or something, the next person to understands in a very different way. Then he passes on to his junior in a very different way. By the time it reaches the ground, nobody understands anything. This is what is called ambiguity. The schemes policy all start with good heart, good intention, but it doesn't work. Why? Because of ambiguity, and nobody takes the responsibility to explain to the other person. This is a very important task. You need to explain. If you are the person who is heading that and there is something around you that is getting confused, you have to take the responsibility. You have to explain to your boss, explain to his boss, explain to your junior, explain to his junior. Idhar bhi, idhar bhi. Right? Bring them to one table. Synergy. Sabka buy-in le lo. They have to be like in sync with whatever you are saying. Right? So that is a big responsibility. That is what is called ambiguity. And then lastly, how you will become a celebrated figure. Kavi kaise banoge? So that you will be respected everywhere by becoming a subject matter expertise. All the time, I only spoke about your subject matter expertise. मैंने नहीं बोला कि आप जाके दूसरे यूनिवर्सिटी से या फिर किसी बड़े ऑफिसर से सीख के आओ. बोला क्या? I only said whatever you know, perfect it. How do you do that? That is what will be. And all these things, whatever I teach in a very different way, wherein I will take your input only, your experience only, and combine it into your strategic career ladder. Career ladder मतलब क्या होता है? Strategy, one step up, then one step up, one. ऐसे ladder करके आपका बनाए. So that is what I do. And ये obviously एक paid course होता है, but ये Black Friday वाला week है. So I offer it at a very price. You can talk to Venkat and then you can decide and you can join so that we can have a group and we can actually create a roadmap, strategic career ladder for yourself, very affordable, and we can have this team of super performing global players. Any question तो बताएं. अंकित, मनी, वीडियो में नहीं आ पाए, बताओ. आप म्यूट पे हो. मैं बोल रहा हूँ अभी मैं वीडियो पे आ जाता हूँ जी. हाँ जी, बताएं. क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी बात आप वेंकट से कर सकते हैं. नहीं मैम, अच्छा था, इंस्पायरिंग था और
वही बात है, ये आपने मेरी स्टोरी आपने बता दी, जैसे अभी यहाँ हो रहा था तो मैं उसको क्विट करके अभी यहाँ पे आ गया हाँ, वर्ल्ड नहीं बैंक के नहीं, प्रोजेक्ट। वही स्टोरी हम सबकी है, आपकी ही नहीं है, सबकी है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट एवरीबडी स्टोरी इज वो वर्किंग प्रोफेशनल। मैंने ये किया ही क्यों है, वो मेरी स्टोरी है। एंड मैंने आपको वही बताया है कि मैंने कैसे उसको ओवरकम किया है। आप जानते हैं 90 जो वेंकट बोल रहा था कि 100% सारा काम करते हुए, एक जमाने में मैं भी वही करती थी। देन वो बोला कि सारा सारा कुछ टू द पॉइंट करता हूँ। यस, आई ऑल्सो डिड। आई वाज सेविंग देयर बजट, आई ऑल्सो वाज सेविंग देयर बजट। भाई तुम कहीं बाहर देते तो कम से कम 2-3 महीने तो जाते आपके, बट एवरीथिंग आई कुड फिनिश इन 15 days। फिर भी लोग क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते? आई वाज थिंकिंग एंड देन this pattern was there, complaining against the boss, complaining against the colleagues। ये आप क्या कर सकते हो? जब पोटेंशियल होता है आप कहा क्या करोगे? बॉस के अगेंस्ट ही करोगे, एंड कुछ नहीं है तो वाइफ के अगेंस्ट करोगे घर में। दैट इज वाई। और किसका कर सकते हो? किसी का कर ही नहीं सकते, इसलिए करते। नाउ व्हाइल डूइंग ऑल दैट, आप अपना जो, हम एक एनर्जी बीइंग है, ये तो पता है ना आपको। हम भगवान के अंश हैं, भगवान एक एनर्जी बीइंग है और हम एक एनर्जी बीइंग है। आप कौन हो? तो मणि प्रकाश आपका शरीर नहीं है। आपका ये बाल जो खुजला रहे हो, वो बाल क्या मणि प्रकाश है? नहीं। आपकी आंखें क्या मणि प्रकाश है? नहीं। नाक है? नहीं। नथिंग, नथिंग इज मणि प्रकाश। मणि प्रकाश कोई है ही नहीं। इट इज एन एनर्जी बीइंग। आपको पहचानने के लिए एक नाम दे दिया गया है। सो बीइंग एन एनर्जी बीइंग, अब वो वही एनर्जी आप अगर वेस्ट कर रहे हो तो कर क्या रहे हो? तो मैं आपको एक स्टोरी इसी बात पे सुनाती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि एक एक झगड़ा हुआ किसी बॉस और दोनों के बीच में, एंड देन दिस फेलो रिजाइंड। द जूनियर फेलो था ना, ही रिजाइंड एंड ही वेंट समवेयर। आफ्टर 10 years दे मेट एट सम प्लेस, एंड द बॉस जो था वो बोला, है बहुत दिनों बाद मिले यार, तू कहाँ चला गया था? उन्हें मिला ही नहीं, एक बार भी फोन भी नहीं किया कुछ। फिर देन वो लोग चाय पी साथ में बैठ के पिए, एंड देन दिस फेलो वाज सेइंग, अपना कंपनी बहुत अच्छा था, आप ही की वजह से मैं गया। वो बॉस ना शौक पे आ गया, बोला कि क्या बात करता है? हाँ, आपने उस दिन ऐसे बोला था 10 साल पहले, आपने ये बोला था, इसीलिए ना मुझे इतना बुरा लगा। दैट इज व्हाई आई रिजाइन एंड वेंट। लगी यार एक बार बात कर लेता यार, मैं माफी मांग लेता अगर तुझे इतना। मैंने वो सोच के बोला ही नहीं था। अब देखिए 10 साल ये बंदा घुट रहा है, जल रहा है, गुस्से में है अपने बॉस, या वो बॉस को पता ही नहीं। ऐसे कहीं ना हो, ऐसे कहीं ना हो। किसी दिन अगर आपको पता चले कि यही हाल है, देन इट इज ए वेस्टेज, सीरियस वेस्टेज। मैं आपको बता रही हूं ना, इट इज ए वेस्टेज एनीवेज गुस्से में होना। Why not find out that potential in you with which you are born? आप तो ये सुने ही होंगे, एवरी इंसान बीइंग इज ए यूनिक इंसान ओनली। सुना है? सुना है ना? यस नो मणि प्रकाश? बिल्कुल मैम, सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है। फिंगरप्रिंट तो अलग होते हैं, पूरा पर्सनैलिटी पूरा अलग होता है, जो personality कॉम्बिनेशन है अलग होता है। कहीं पे मैंने पढ़ा है कि आपके थोड़े बहुत रिजेंबल करने वाले 33 लोग हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत 33 लोग इस दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली एक जैसा नहीं हो सकता, ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी हो, पॉसिबल ही नहीं। तो एक ही यूनिक पर्सन बना है, उस यूनिक पर्सन का क्या कर रहे हैं? भगवान ने जिसको यूनिक बना के भेजा है इस धरती पे, क्या हो रहा है उसका? किसी दिन आपको जवाब देना पड़ेगा भगवान को। क्या दोगे आप? बताओ। राइट? वो सोच के आप सोचो कि अगर आप यूनिक हो तो वेंकट भी यूनिक पैदा हुआ है, अजय भी यूनिक पैदा हुआ है, आपका बॉस भी यूनिक पैदा हुआ है। वो नहीं समझ पाया ना सही, आपको तो पता चल रहा है ना कि वो यूनिक है। और वो आप ही की जिंदगी में क्यों आया? वो आपका बॉस मेरी जिंदगी में क्यों नहीं था? वो इसलिए क्योंकि जो कॉम्बिनेशन और जिस काम के लिए आए हो ना, उसके लिए जो लर्निंग चाहिए वही आप ही को देने वाला दे सकता है, इसीलिए वो आपके इर्द गिर्द है।
ये जो लेखा जोखा है ना, ये पहले से आप ही ने डिसाइड किया है। आप चॉइस, ह्यूमन बीइंग के पास क्या यूनिक है? चॉइस है, पावर ऑफ चॉइस है। और ये चॉइस वो पैदा होने से पहले एक्सरसाइज भी करता है। भगवान ने ये चॉइस का पावर उन्होंने अपने, आपके चॉइस को ओवरराइड करके भगवान भी कुछ नहीं करते। इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग जो है ना, यूनिक है, यूनिक क्रिएशन है। एंड देन आपने जो चॉइस लेके, मतलब आपको ऑल्टरनेटिव मिला, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी साइड में मैं थोड़ा सा जा रही हूँ, लेकिन ये हेल्प करेगा। अगर ये हेल्प करता है आपको, इसमें बुरा क्या है? सो इट इज लाइक कि जब आप पैदा हो रहे थे तो आपको ना 3-4 चॉइसेस मिले थे। सो यू हैव टेकन दैट चॉइस which will give you the maximum growth, which will give your soul the maximum growth. वो चॉइस आपने लिया है, पता नहीं है कि कैसे लिया। Now you have chosen the best choice for you. आप अभी 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 आपको लग रहा है कि क्या यार, क्या जिंदगी मिल गई, मेरी जिंदगी तो क्या है। आपके लर्निंग के लिए, आपके सोल जर्नी के लिए दिस वाज द बेस्ट दैट यू हैव चूजन। एंड अभी तक जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, किसी और छोड़िए, दूसरे का तो हम कंट्रोल में नहीं ले सकते ना। लेट अस टेक कंट्रोल ऑफ आवर ओन लाइफ्स इन आवर ओन वे एंड वी कैन। अभी आप बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ। जो आपको मैं बोल रही हूँ ना, अभी 15 दिन पहले, इवन फ्राइडे को मेरे ईडी ने मुझे बोला कि आपको एक मैं नया पोर्टफोलियो देता हूँ, बिकॉज आई डोंट सी कि व्हाट यू डू। अब देखिए, कोई आपको बोले कि व्हाट यू डू वी डोंट नो, तो आपको गुस्सा आएगा ना। लेकिन मेरे ईडी इतना कंसर्न क्यों थे? वो तो बोलते कि यार इसकी जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए बोले हाउ आर वी यूटिलाइजिंग हर टैलेंट्स एंड स्किल्स। एंड देन ओनली आई कुड टेल हिम कि व्हाई आपको दिखता नहीं। मैं तो रोज जाके नहीं बोली आज मैंने ये कर दिया, रोज जाके बोलूंगी क्या? वो मैं नहीं बोलूंगी। सो at my stature I cannot do that, I cannot tell you. So you have to have a system in place wherein everybody should be able to tell कि वो क्या करता है। everybody should be able to see कि वो दूसरा क्या करता है। देखेगा तभी दूसरे का यूटिलाइज करेगा ना। वही सेम काम लाइक ही वाज सेइंग कि वी शुड बी एबल टू रीच आउट टू एवरी स्टेट। हम पूरे इंडिया में काम करते हैं, 219 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस में। एंड हम आरबीआई को जवाबदार हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको बताते हैं। नाउ ही वाज सेइंग कि वी शुड बी एबल टू रीच एवरी स्टेट इन ए ईयर। मैंने बोला क्या बात करते हैं, एवरी स्टेट को 3-4 बार हम रीच आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द सिस्टम इज इन प्लेस। मैं किसी को कुछ पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहा है 15 दिन तक, तो फिर 15 दिन के बाद मैं भूल गई, मैं आई वॉज एंगेज्ड इन समथिंग एल्स। और वो उसका इसका पता उसको नहीं है, उसका पता इसको नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? देन पता चला एक दिन कि मैं जो काम कर रही हूँ वो दूसरा भी कर रहा है, दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, फालतू का वेस्ट हुआ ना। सो I am in a position to tell him that to the boss because I know what is the best for the organization. आपको भी पता है कि what is the best for your organization. वो जो बेस्ट होगा that will be through you. आपको जो रोल मिला है उसी के थ्रू होगा। Are you able to do that? जो नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, that reason you have to find out and align yourself into that, right? ये एक दिन में नहीं होगा। the change has to happen within you first. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बोला कि एक अजीब सा बड़ा सा विजन स्टेटमेंट से शुरू करो, पहले वो लिखो, then only you can transition slowly. क्योंकि एक में, और वेंकट को मैंने एक और भी चीज बताई। देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दैट विल टेक टाइम टू हैपन। अगर आप आज चेंज हुए ना,
वो लोगों को पता चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो हाउ डू यू डिसरप्ट दैट पैटर्न? तो मैंने उनको एक क्लू बताया था, आपको नहीं बताऊंगी वो उनको मैंने प्राइवेटली बताया था. मैं सबको अलग अलग क्लू बता दूंगी, आप क्या करोगे टू डिसरप्ट दैट पैटर्न, राइट? तो वो आप कर लेना. महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना है ना? वो क्या थे? क्या उनके पास बहुत बड़ी कार थी, बंगले थे, बैंक बैलेंस था, कुछ था? कपड़े ही वो उन्होंने मिनिमल जो दो कपड़े थे, ऊपर डाल देते, एक धोती भी नहीं थी, वो तो पता नहीं गमछा ही डालते थे, राइट? फिर भी पूरी दुनिया उनकी कायल थी. मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही थी जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का जो स्पीच है ना, उसको मतलब रट के बोलने के लिए बोला गया था. ठीक है, वैसे बाय द वे मैं 13 लोगों से ट्रेनिंग करती हूँ. आप वो कोच मत लेना जिसका कोच ना हो. तो मैं पहले से ही बता देती हूँ, मेरे पास 13 कोच है. एक मेरे इमीडिएट कोच, 12 उसके ऊपर का कोच, और एक ग्रैंड कोच जो रॉबर्ट कियोसाकी का भी कोच है. रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड आपने सुना होगा, उनका जो कोच है वो मेरा कोच है, ब्लेयर सिंगर. सो इतने सारे कोच जो हैं इस बात से मैं ये बोल रही थी. सो ये सारे जो कोचेस हैं, ये सारे बताते रहते हैं आपको कि व्हाट विल बी योर डायरेक्शन, राइट? एंड दैट डायरेक्शन you have to take, and in that there is a process in which आप कुछ लोगों को ना आप नकल ही करो. महात्मा गांधी को नकल करो, बड़े बड़े लीडर्स जो है उसको नकल करो. तो उन्होंने नकल कैसे करे? तो उन्होंने बोला कि वो जो बड़ा फेमस सा स्पीच दिए है ना, रट्टा लगाओ उस स्पीच का और बोलो, राइट? और उन्होंने बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट महात्मा गांधी. आप मैंने जेफ कैनेडी जो मून पे भेजा है रॉकेट, उनका रट्टा लगाया, और दूसरे ग्रुप को दूसरा मिला था, मैंने इनका रट्टा लगाया. ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि महात्मा गांधी का दे देते यार, हमारे लिए तो आसान था. वो बोले कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट हिम. आज के दिन में कितने साल हो गए उनके गए हुए? 80 साल हो गए. अब इस जमाने में भी लोग सोच रहे हैं कि उनको रेप्लिकेट करना मुश्किल है. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के बारे में कि आज से 100 साल बाद लोग बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि एक बंदा महात्मा गांधी जैसा कभी हुआ था. वो बोलेंगे कि ऐसे ही जैसे राम के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के बारे में हम लोग सोचते हैं कि यार सच में थोड़े ही थे, वो तो कहानी थी, बोलते हैं ना. ऐसे ही लोग बोलेंगे कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो थे या नहीं थे, या फिर सच था, कहानी था, राइट? नो कंट्रोवर्सी. बट ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि उनके जैसा लाइफस्टाइल अपना पाना मुश्किल है. दैट इज व्हाई. तो सभी कोई सोचे थोड़ा. आज जो मैंने बता दिया आपको ना, थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दिया आपने, थोड़ा सा ब्रेन आपका उथल पुथल हो रहा होगा, वो थोड़ा आप सोचें, वेंकट से बात करें और फिर मेरा कोर्स ज्वाइन करना. मेरा यही कहना होगा. आज तो मैं पिच नहीं की, एक दिन पूरा बैठ के अगले फ्राइडे को बैठते हैं और पूरा बैठ के ना मेरा जो पीपीटी प्रेजेंट किया हुआ उसमें और भी कुछ मिसाइल्स है वो मैं फायर करूंगी उस दिन करेंगे. लेकिन तब तक अगर आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर जाओ तो मजा आ जाए और शुरू कर सकते हैं. इतना भी मुश्किल नहीं है कोर्स में ज्वाइन करना. थैंक यू. और कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. वो मैम कोर्स के रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? वो वेंकट से बात कर लीजिए. जो वेंकट ने ज्वाइन किया है वो कोर्स ज्वाइन कीजिए. पेड कोर्स तो है और इट इज 5,999 ओनली. और जो मेरा 3rd लेवल कोर्स है वो 49,999 है. एक्चुअली मैं 3rd लेवल पे जो कोर्स सिखाती हूँ ना, वो आपको 1st लेवल कोर्स के प्राइस पे दे रही हूँ अभी. ये ब्लैक फ्राइडे का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में देना होता है. ओके मैम.
सो ग्रुप में आएंगे, सभी को एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से लगभग आप लोग हैं, तो क्या होगा कि रिलेवेंट होगा आपके लिए सारा कुछ अलग। मेरे सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। अजय मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, अभी वो मणि प्रकाश जी ने वो रिजाइन करके दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ। ये ब्रह्मचारी एपी मास का है। अच्छा, ओके ओके, गुड गुड। सो आई वर्क विथ CS रेड्डी ब्रह्मचारी, सो CS रेड्डी एंड राजलक्ष्मी, रामलक्ष्मी है ना, रामलक्ष्मी, यस, रामलक्ष्मी उनका मेंटर है, उनका सीनियर है। yeah, so I work with both of them, yes, anyways, को कहाँ पे कोई है, हम भी डिफरेंट है बट काम तो एक ही, anyway. बिल्कुल बिल्कुल। So, अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया है अटल भूजल योजना को, वर्ल्ड बैंक, तो IWRFP मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट को मिला हुआ है हरियाणा में। तो उसमें मैं बीइंग एज ए टीम लीडर ज्वाइन किया है। युवा मित्र और AFC है, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। अच्छा, AFC के साथ में। हाँ हाँ, यस, इन तो सबके साथ हमारी काम होते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट पार्टनर है और एक अपना भी एजेंसी है, कैपेसिटी बिल्डिंग एजेंसी। तो वी आर गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग्स टू द पंचायत, ओके, फॉर बिहेवियर चेंज रिगार्डिंग अटल भूजल योजना। ओके, तो अपॉर्चुनिटी मिला है मैम जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बढ़िया होगा सबके लिए। एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर में है, फाइनेंशियल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में है, वुमेन कोऑपरेटिव में है। इंडिया का फर्स्ट FPO इन्होंने ही बनाया था, AFC ने। हाँ हाँ जी, तो मैंने ये जो बांधवगढ़ में बता रही हूँ ना, उस एरिया में 6 डिस्ट्रिक्ट को मैं हैंडल कर दी थी एक टाइम पे, तो वहाँ पे 10 बनाया, और फिर सिक्किम में नॉर्थ और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फिर मैंने 11 बनाया। तो वो डायरेक्ट मेरे थे, और बाकी जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने तो 250 से ज्यादा बनाया, तो वो सारे को मैं इनडायरेक्टली देखती थी। और अभी जो मैं काम कर रही हूँ उसमें 219 माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और वो डिफरेंट लेवल से है, तो वो सारे को मैं देखती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करती हूँ। उनमें से कई सारे ये SHG मूवमेंट में है, जो जिसके लिए मैं AP मास के साथ काम करती हूँ। FPO प्रमोशन है, जिसके लिए समुन्नति है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रदान है, बेसिक्स है, इनके साथ काम करती हूँ। 10 साल में बेसिक्स में रही, एंड देन 12 साल में उसके पहले MNC में रही, जहाँ पे मैं डेटा एनालिस्ट थी। एंड बेसिक्स में एक्चुअली मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कर लूंगी, बट वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आप कर लोगे। जब सिर्फ मुझे एक डिसीजन लेना था कि सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा है जिसको कोई नहीं ऑप्ट कर रहा है, सो आई ऑप्टेड देम एंड आई सक्सीडेड। अब मुझे पता ही नहीं था कि आई कुड डू, सो दैट वाज माय स्ट्रेंथ ना, कि जहाँ पे चैलेंज है वहां पे मुझे मजा आता है काम करने में। वैसे ही आप अपना अपना भी ढूंढ लेना, सो सबके एक जैसा नहीं होता है। थैंक यू। ये कौन बोला? अंकित जी वो भी हम पूरा लास्ट ईयर he worked with us. Right now he is looking after his business. Okay. He want to start some small micro entrepreneur business right now. अंकित जी आपका कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप? फंक्शन में है। हाँ, so he is saying कि he will take details from you, so talk to him properly. If like say in the next session and Friday most probably we'll do another session in which I'll run through my PPT ना, जो भी है उसमें, and then I'll take your input also, and then if we can start then actually we can do this together, कि whatever I am teaching you, more than that, like say everything, देखो homework करने में भी आएगा, accountability आएगा, then it will be good. So okay. Thank you for being here. So thank you so much
Thank you so much for you also, madam. Looking spending forward time. for you to join me and then working together. बहुत सारे लोगों को reach out करना है, so remember that खाली आप लोग नहीं हो, तो the people that you will be reaching out to and bringing them together ना, उनको ये 50,000 में मैं दूंगी, because you know it takes time to ये bonding करने के लिए. So yes, so आप सब कोई इकट्ठा आ जाए. See you Friday को. Thank you, Bye ma'am. bye. Bye bye. Bye. Ajay, Thank you. bye. Bye. Bye Bye. Brahmachari, Mani Prakash, Ankit. Thank you so much. Bye.